सर यस सर बोल रहे थे सर आज थोड़ा वो ग्राफ वाला पार्ट से शुरू करिएगा ना सर। हाँ ग्राफ वाला गुड आफ्टरनून सर। गुड। सर क्लास कब तक चलेगा सर? टाइमिंग सर? 1 बजे तक। ओके ठीक है, तो कल हम लोग यही थे। यस सर। यस सर। So let us start the discussion. So थोड़ा रिमाइंड कर लेते हैं, है ना चीजें कहाँ से हम लोग स्टार्ट किए थे। So we have started with the MOSFET, है ना, and MOSFET is, if we look with the full form, क्या था? Metal oxide semiconductor field effect transistor, right? Then we have seen that it has two type, है ना, depletion one and enhancement one. So depletion and enhancement. In depletion we have N channel, P channel. In enhancement also N channel and P channel. Okay, then we have gone into the construction part. Okay, how this MOSFET is going to construct it. So अगर आप N channel बना रहे हो कि P channel बना रहे हो, depending upon we have taken the substrate. Okay, and then top of that, near to the corner both side, we have doped with opposite type of semiconductor. जो हमारा बेस है, जो सबस्ट्रेट है, उस पे हम उसके अपोजिट
टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर से डोपिंग करके, है ना, थोड़ा highly doped we were doing. Okay, now this is called as source and this is called as drain. Okay, and top of your p-type semiconductor material we are depositing or growing, okay, oxide, thin layer of oxide, and top of that we have a gate terminal. Okay, and this could be metal and polysilicon material. Okay, and this is the structure of your MOSFET. Then we have started with the what, giving some potential on the gate and doing analysis on what happening in the MOSFET itself. Okay, and then we have obviously seen the circuit symbol. Okay, symbol. Okay, so this is drain, source and gate. Okay, so now depending upon the depletion or enhancement, this area you can fit. If it is in depletion, then this area is colored or showing that channel already there. Okay, and if it is N type, then there will be no bubble. If this is P type, then there is a bubble. So this symbol is for depletion type. Okay, और बोलो किसका है? N channel. N, sorry, P channel, because bubble we have put. So this is P channel. Okay, so we have seen these things. What is happening when we are doing some positive value? What is happening when we are giving negative potential at gate? Okay, and what is happening if we are increasing potential at drain side? These things we have discussed. Now जब आप एक डिवाइस बना लिए, ओके, और देख लिए कैसे काम कर रहा है, then the further study is what? VI characteristics, current voltage characteristics, और इसको आउटपुट characteristics भी बोल सकते हैं MOSFET का. ठीक है, ओके. सो क्या क्या कंडीशन था? पहला कंडीशन क्या था? हाँ, एक चीज और इम्पोर्टेंट इसमें था कि हैव टू फॉर द बायसिंग पर्पस, और ऑब्वियसली जब आप कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हो, दैट मीन्स सपोज आप एक डिवाइस बना लिए, एक आपके पास डिवाइस है सपोज, ओके, जैसे कि आप सोच लो कि कार आप खरीद के लाते हो. कार का काम क्या है? सपोज 4 व्हीलर आप बाई करके लाते हो सपोज, तो उसका काम क्या है? चलेगा, कैरी घूमने करता फिरने का, है ना, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक हमको लेके जाता है या कैरी करता है हमको या सामान को, किसी भी चीज को. ठीक है, ओके. लेकिन इसके प्रोसेस में क्या, उसमें तो हमको एनर्जी लगेगा, एक ड्राइवर भी रखना पड़ेगा, राइट, जो चीजों को स्मूथली कंट्रोल करके उस विदाउट एनी एक्सीडेंट हमको वहां तक पहुंचाए, ओके, विद इन द टाइम पहुंचाए, और हम चाहते हैं कि फास्ट भी पहुंचे. तो दीज आर द कंस्टेंट व्हेन इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ कार तो ऐसे नहीं चलता, उसमें पेट्रोल भरना पड़ेगा. अगर वो डीजल कार है तो डीजल भरना पड़ेगा. अगर इलेक्ट्रिक कार है देन ऑब्वियसली मोटर को चलने के लिए वो तो पावर चाहिए, है ना, बाहर से, अपने आप तो नहीं चलेगा. तो बट अगर आप इसको ऐसे, इसके अंदर क्या क्या चीज लगा हुआ है और कैसे कैसे चल रहा है, उसको अगर आप छोड़ दो, आप ऊपर से देखो, तो हम कार के बारे में बात करें. हमको अभी उसके मोटर और ये सब से कोई लेना देना. ओके, कार
मतलब एक वैसा डिवाइस जो हमको यहाँ से वहां लेके जाए, ये उसका काम है। ओके, लेकिन उसको करने के लिए आपको मोटर भी लग रहा है, मोटर में पावर भी लग रहा है, आप कौन सा टाइप का यूज कर रहे हो, कहने का मतलब एक्सटर्नल एनर्जी देंगे तभी तो वो काम करेगा, वो भी बैलेंस्ड। ओके, सेम चीज है व्हेन यू आर डीलिंग विद द एनी डिवाइसेस। अभी हम मॉसफेट ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली इसको पहले कुछ तो देंगे तभी तो ये काम करना स्टार्ट करेगा, दैट मीन्स। और इसको क्या देंगे, हवा पानी तो नहीं देंगे। ऑब्वियसली इफ यू आर डीलिंग विद द इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, देन ऑब्वियसली हम एनर्जी देंगे, है ना। और हमारे पास इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स और आप क्या बोल सकते हो, यही दो फील्ड अभी डिस्कस कर रहे। तो इसमें पावर देने का तरीका क्या है डिवाइसेस, इलेक्ट्रिसिटी, है ना। आप मैकेनिकल बोलोगे तो उसमें तो प्रेशर है, बहुत सारी चीजें आ जाए, लेकिन जब आप इलेक्ट्रिकल की बात करोगे तो यही है इलेक्ट्रिसिटी, ईएमएफ। ओके, और मैग्नेटिक, ठीक है। तो ये जो मॉसफेट है हमारे पास, सपोज 3 टर्मिनल का ऐसा एक मॉसफेट दिख, आप बाजार में जाओगे तो ऐसा मिलेगा, ऐसा दिखेगा, इसका लुक ऐसा है। ओके, सो इज ड्रेन गेट लाइक दिस। ओके, ये हो गया मॉसफेट आपका। तब ये लेके खरीद के लेके आओगे और ऐसे रख दोगे टेबल पे, तो क्या चलने लगेगा, ये काम करना स्टार्ट कर देगा, या इस पे कनेक्शन कर दिए सपोज वायर से, तो ये काम करना स्टार्ट हो जाएगा अपने आप, होगा। कुछ बोल नहीं रहे तुम लोग, आवाज क्लियर नहीं आ रहा है सर। आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। नहीं सर। नहीं सर। अभी हाँ बोलिए सर। आवाज आ रही है अभी। हाँ सर बोलिए। मैं बोल रहा हूँ कि एक मॉसफेट खरीद के लेके आए, ये मॉसफेट अगर मार्केट से खरीदने जाओगे तो ऐसा दिखेगा। ओके, अगर आप 3 टर्मिनल है, 3 टर्मिनल डिवाइस है, ओके, 1 टर्मिनल, 2 टर्मिनल एंड 3 टर्मिनल, तो अभी मार्केट से लेके आओगे और ये काम करना स्टार्ट कर देगा। नहीं सर, नहीं नहीं सर। करेगा। क्या करना पड़ेगा इसको काम करवाने के लिए। कनेक्शन सर करेंगे, पावर फिर सप्लाई वोल्टेज करना देंगे, होगा। पावर सप्लाई नहीं देंगे कैसे होगा। हाँ, that means you have to apply some external energy, इसको देना होगा, उसके बाद ये जैसा काम करने के लिए है वो फिर काम करेगा। तो मॉसफेट कैसा काम करता है, या तो स्विच की तरह काम करता है, नहीं तो एम्पलीफायर की तरह काम। जितने भी ट्रांजिस्टर आप पढ़ रहे हो, सिंपल बीजेटी वाला या जेफेट वाला या ये मॉसफेट वाला, ओके, ये सब या तो एम्पलीफायर या तो सिग्नल को एम्पलीफाई कर सकता है, नहीं तो ये स्विच की तरह काम करता है हमारे सर्किट। ओके, तो ऐसा उसको काम कराने के लिए हम एनर्जी, एक्सटर्नल एनर्जी देते हैं। तो ये डिवाइस को काम कैसे करेगा, जब आप ये जो मॉसफेट कैसे काम करना स्टार्ट करेगा, डिपेंडिंग अपॉन द type what you have chosen. Okay, carefully if you apply the gate voltage with respect to source, then your MOSFET is going to start functioning or start conducting. Okay, so we have seen the structure. अंदर कैसे काम करेगा जब आप पोटेंशियल अप्लाई कर दोगे, we have seen how the electron is gathering near the oxide layer, and then obviously it will start the flow of current. Okay, so now ये सब मतलब समझने के बाद you have to understand that now your device is on, suppose. Okay, so your device is on now, suppose. So this is drain and this is source and this is gate. Okay, so ये अब इसमें करंट फ्लो हो रहा है। सपोज गेट पे आप कुछ 5 वोल्ट या 2 वोल्ट दे के रखे हो,
ओके, जो VTH से ज्यादा है तो ये ऑन हो जाएगा, यही पढ़े थे हम लोग, है ना। इधर आप सपोज 10 वोल्ट दे के रखे, ओके, तो अभी कोई एक करंट फ्लो हो रहा होगा इसके सोर्स टू ड्रेन, ये पूरा सर्किट में, है ना, सपोज 1 एम्पियर मान के हम, ये इतना फ्लो नहीं करेगा, जस्ट आई एम टेकिंग एग्जांपल, लेट्स से मिली एम्पियर, ओके। फिर आपने देखा बढ़ा के 11 वोल्ट कर दी, फिर कुछ एक और आया सपोज वैल्यू, तो 11 पॉइंट ऐसे इंक्रीज करेगा, वोल्टेज बढ़ा है, इधर कंडक्ट हो रहा है तो ऑब्वियसली इंक्रीज करंट भी बढ़ेगा, है ना। लेकिन आप इस पे ये भी देखें कि जैसे जैसे आप ये पोटेंशियल पॉजिटिव होते जाएगा, आपका जो चैनल है नियर द ड्रेन साइड, इट इज गोइंग टू बी नैरो, है ना, ओके, ड्यू टू डिप्लेशन लेयर इंक्रीज हो जाएगा, ओके। तो आप स्टार्ट किए, सपोज ये तो ऑन हो गया, स्टार्ट किए 1 वोल्ट से, 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट ऐसे करके डिफरेंट यू गॉट डिफरेंट करंट फॉर द डिफरेंट वोल्टेज, ओके। नाउ व्हाट विल ट्राई टू लुक कि इसका बिहेवियर कैसा है, कितने वोल्टेज पे कैसा ये बिहेव कर रहा है, तो उसके लिए आपको कुछ ग्राफिकल प्लॉट चाहिए, है ना। ऐसे तो हमको नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन इसी चीज को आप ग्राफिकल में हर एक पॉइंट पे लेके अगर आप ग्राफ ड्रॉ कर दोगे, तो आपको 0 से लेके जहां तक भी आप वोल्टेज वेरी कर रहे हो, तो वहां पे आपको एक प्रॉपर स्मूथ लुक आ जाएगा, क्योंकि एक एक पॉइंट पे लेके रीडिंग लेना इज क्वाइट डिफिकल्ट। बट आप सपोज आपके पास मात्र 5 पॉइंट है, 1 पॉइंट 2 पॉइंट, सपोज 5 ही रीडिंग है, ऐसे ऐसे कुछ एक रीडिंग आया, डिफरेंट वोल्टेज, ओके, यहाँ से यहाँ तक 10 वोल्ट मान के, तो जब आप ये रेफरेंस से इसको ज्वाइन करोगे, तो आपको एक इतना सारा रेंज मिल गया रफली, ओके। नाउ यू कैन एनालिसिस योर थिंग कि हाँ अभी मतलब ऐसा है, तो मतलब मैं 1 वोल्ट दूंगा, तो यहाँ से अगर मैं ऐसे ऊपर तक लाइन को एक्सटेंड करूं और इसको इधर लाइन पे एक्सटेंड करूं, है ना, तो कितना करंट है इस वोल्टेज पे आप रफली कैलकुलेट और देख भी सकते। ये ग्राफिकल प्लॉट का एडवांटेज हो जाता है इंजीनियरिंग, ओके। सो व्हाट विल डू, विल लुक फॉर द आवर output characteristics. Output characteristics is drawn between our voltage VDS and current ID, okay, ID versus VDS। तो ये ID versus VDS जो भी हम VDS जो भी वोल्टेज हम दे रहे हैं फ्रॉम 0 टू whatever, ओके, करंट कब फ्लो होना स्टार्ट हो, जब आपका VGS ग्रेटर देन VTH था, है ना, हाँ कि ना। Yes. जब आपका गेट वोल्टेज, है ना, VGS मतलब क्या, गेट टू सोर्स वोल्टेज, वो ग्रेटर देन किससे था, VTH थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ज्यादा था, तभी चैनल बनेगा, और उसके बाद जो भी आप VDS पे दोगे आराम से करंट कंडक्ट करेगा, मतलब करंट फ्लो होगा, कंडक्शन स्टार्ट हो जाए, क्लियर, ओके। तो तुम कंसीडर करो ये एक ग्राफ खाली, ये छोड़ दो, ये मत देखो, ये मत देखो, ये मत देखो, ये मत देखो, और ये भी मत देखो, राइट नाउ सी जस्ट वन, ओके। ये क्या है, when your VGS is, बोलो, सपोज VTH के बराबर, ओके, VTH +1 VTH +2, क्योंकि जब VTH से ज्यादा होगा तभी ये करंट कंडक्ट करेगा। अभी आप बढ़ाते जाओ VDS को, बढ़ाते गए, कहां तक बढ़ाओगे, सपोज यहाँ तक लेके आए, ओके, ठीक, यहाँ के बाद आप देख रहे हो करंट बढ़ ही नहीं रहा है, आप VDS बढ़ाते जा रहे हो लेकिन करंट ये कांस्टेंट हो गया, ओके। तो ये कब कांस्टेंट हो रहा है, जब आपका VDS, ये जो वोल्टेज है,
ये VTH माइनस VGS माइनस VTH से ज्यादा हो जाए. Okay, that region is called as saturation region or active region in the MOSFET. ठीक है, got the point. और ये रीजन को हम क्या बोलेंगे, ट्रायोड रीजन और लीनियर रीजन, क्योंकि आपका जो वोल्टेज है, वोल्टेज अगर चेंज हो रहा है तो करंट भी लीनियरली ही चेंज हो रहा है. ओके, इतना तक आप बोल सकते हो कि ग्राफ लीनियर मतलब क्या, जो आप ये ग्राफ को आप लीनियर बोलते हो, है ना. लीनियर वेरी कर रहा है, कहने का मतलब प्रोपोर्शन में, अगर 1% वोल्टेज बढ़ा है तो 1% करंट बढ़ा, नियर अबाउट, है ना. 1.1% वोल्टेज बढ़ा है तो नियर अबाउट 1.1% ही करंट बढ़ा. तो दैट मीन्स हम क्या बोलेंगे कि हमारा ये आउटपुट लीनियर है. इनपुट अगर चेंज कर रहे हैं कुछ तो आउटपुट उसी के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, लेकिन आप ये ग्राफ को लीनियर नहीं बोल सकते, है ना. ठीक है, तो यहां तक आपका लीनियर है. तो इस रीजन को कब क्या बोलेंगे, ट्रायोड. तो लीनियर रीजन कब रहेगा आपका मॉसफेट, जब, इधर देखो फिर से रब कर दो, हाँ इधर ये ग्राफ देखो, ठीक है. ये मतलब ये सर्किट देखो, लीनियर इज सपोज ये 5 वोल्ट, ओके. और ये जो आप गेट, जो आपका VTH है, इस मॉसफेट का सपोज 1 वोल्ट है, ओके, 1 वोल्ट, ठीक. और आपने अभी VDS कुछ अप्लाई नहीं किया, अभी 0 मान, ये 0 है, ठीक. 1 वोल्ट अप्लाई कर दिए VGS, तो अभी ये ऑन हो गया, ओके. ऑन इन द सेंस अब करंट फ्लो हो सकता है, ठीक है, क्योंकि आपका इस मॉसफेट के लिए VTH जो था, थ्रेशोल्ड वोल्टेज था, वो 1 वोल्ट था. तो हमने 1 वोल्ट ही अप्लाई कर दिया. 1 वोल्ट से कम अप्लाई करते यहाँ तो ये ऑन नहीं होता, राइट, क्योंकि VTH आपका 1 वोल्ट फॉर दिस केस. तो जैसे ही आपने VGS 1 वोल्ट अप्लाई कर दिया, ओके, और VDS सपोज आपने अप्लाई किया सपोज 1 वोल्ट या 1.2 वोल्ट, ओके, ठीक है. तो करंट फ्लो होने लगेगा इस सर्किट में. अब देखो ये वाला चीज, ये केस देखो, ये लीनियर कब तक रहेगा, जब तक VDS जो है वो लेस देन है VGS माइनस VTH, ओके. तो VDS कितना है, 1 वोल्ट, 1.2 वोल्ट, ओके. इस केस में मैं बोल रहा हूं VGS माइनस VT मतलब क्या, बोलो. VGS 1 था, VTH भी 1 था, तो 1 क्या हो गया, 0. मतलब 1.2 ये लीनियर रीजन का, ये अगर आप VDS इतना अप्लाई कर दोगे तो ये लीनियर रीजन में नहीं रहे. यही हुआ ना इसका मतलब, है ना. क्लियर है. तो ये जो VDS है, कहने का मतलब है कि आप ये जो आपका सपोज 0 से 10 वोल्ट का आपका एक सोर्स है, ओके. तो आप 0 से 10 वोल्ट तक वेरी कर रहे हो और इधर भी कुछ आप वेरी कर रहे हो. तो ये आपका सर्किट, मतलब आपका जो मॉसफेट है, वो कौन से वोल्टेज में, कौन से रीजियन में ऑपरेट करेगा. It will depend upon how much you have applied VDS and how much you have applied VGS. So if you want कि आपका ट्रांजिस्टर इस रीजन में ऑपरेट करे only, then carefully you have to look for this condition. If you want कि आपका जो ट्रांजिस्टर है वो इस रीजन में काम करे, तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी होगी.
जो कि अभी हो रहा है। देखो 1.2 अप्लाई किए हम यहाँ पे, है ना, VGS 1 था और VTH भी 1 था, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। हमारा VDS इज ग्रेटर देन VGS माइनस VTH फॉर दिस केस। तो ये अभी कौन से रीजन में यहाँ पे ट्रांजिस्टर ऑपरेट कर रहा है? सैचुरेशन रीजन। गॉट द पॉइंट? So we have 3 region of operation. First one is cutoff region. Cutoff region कब होगा? जब आपका VGS less than VTH होगा, पहला, है ना। अगर VTH से कम VGS अप्लाई करोगे या ऑन ही नहीं होगा, no current will flow. So this region only minor current is going to flow due to the reverse bias of your PN junction, leakage current only. Okay. So VGS minus VTH पे कोई करंट नहीं. Then we have VGS, अगर आप ग्रेटर देन VTH अप्लाई कर देते हो तो अभी तो ऑन हो गया, और आपका जो VDS अप्लाई कर रहे हो वो VGS माइनस VTH से कम है, तो वो लीनियर रीजन में ऑपरेट करेगा। क्लियर है? अगर ये चीज ज्यादा है तो वो सैचुरेशन रीजन में ऑपरेट करेगा आपका ट्रांजिस्टर। ठीक है? ओके। सो डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट VGS विल हैव द ग्राफ। अगर आप तीनों ट्रांजिस्टर को देखोगे तो लगभग सेम काइंड ऑफ आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा। ओके, ये ट्रांजिस्टर का था, है ना, ये आपका लाइक दिस वो जेफेट का था, ये सामने आपका मॉसफेट है। तो तीनों ट्रांजिस्टर का काम एक ही है, स्विचिंग और एम्प्लीफिकेशन। नाउ तीनों का हमको आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स देखना है, किसके किसके बीच में ड्रॉ होता है। ओके, कॉन्फ़िगरेशन देखना है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, देन करंट इक्वेशन, आईडी का, इसमें तो आउटपुट करंट आईडी है तो आईडी हो गया, है ना। बीजेटी में हमारा 3 तरह से आता था, आउटपुट करंट आईसी वर्सेस, अभी जो कॉन्फ़िगरेशन आप यूज किए होगे, कॉमन बेस की, कॉमन कलेक्टर की, कॉमन एमिटर, इसमें भी कॉमन आएगा, है ना, कॉमन ड्रेन, कॉमन गेट, कॉमन सोर्स। ओके, बट अभी आपके सिलेबस में वो नहीं है इतनी चीजें। ठीक है, क्लियर है? सबको समझ आया क्या? कोई दिक्कत है तो बोलो जल्दी। तो नहीं है सर। ठीक है ना? हाँ सर, ठीक है। यस सर। ओके, सो नाउ विल मूव टू द करंट इक्वेशन। ओके, जो कल हम लोग देखे थे। ओके, सो एज पर द output characteristics, okay, you see we have 2 section, एक तो पूरा linear है हमारे पास, है ना, और एक थोड़ा constant kind of things है। ओके, तो हमारे पास 2 इक्वेशंस है ये पोर्शन के लिए, मतलब जब आपका लीनियर रीजन में है ट्रांजिस्टर और एक सैचुरेशन रीजन में है ट्रांजिस्टर, तो वी हैव 2 करंट्स इक्वेशन। सो फर्स्ट, इफ योर transistor is in linear, so this current equation going to be used. So क्या है current equation? Your drain current is going to be K dash by 2 W by L। ये रेशियो है चैनल का, जो चैनल बन रहा था ना उसका विड्थ बाय लेंथ। ओके, वो कितना मोटा है और कितना ये है, लेंथ उसका कितना है, ऑब्वियसली उस पे कंडक्टिविटी डिपेंड करेगा, है ना। तो इसीलिए वो करंट इक्वेशन में उसका पार्टिसिपेशन है। ओके, सो W by L, ओके, ब्रैकेट 2 into VGS minus VTH। ओके, VGS minus VTH ऑब्वियसली,
ठीक है, इंटू VDS माइनस VDS स्क्वायर। इसका डेरिवेशन आपको लगेगा नहीं, जस्ट रिमेंबर दिस इक्वेशन। ओके, ठीक है। अभी इसको सिंप्लीफाई कर दिया, इस टोटल टर्म को ना एक कांस्टेंट k में हम लिख सकते हैं, तो k by 2 into 2 VGS minus VTH और VTO दोनों सेम चीज है, into VDS minus VDS whole square. Okay, so k dash is a process parameter और process transconductance, और इसको गेन फैक्टर भी बोलते हैं। ये टोटल टर्म को 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, है ना। सो k dash is given by mu(n) into COX। ओके, प्रोसेस ट्रांसकंडक्टेंस जिसको बोलते हैं। ओके, सो k is going to be k dash W by L। ये जो k dash W by L को हम k बोल दे रहे हैं। ओके, और k dash क्या है, mu(n) COX। ओके, COX क्या है, ये कैपेसिटर ऑफ ऑक्साइड है, ये मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ओके, जो ऑक्साइड बन रहा था ना, वहां पे देखो, वहां पे एक कैपेसिटर फॉर्म हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखो तो। डिटेल में अभी देख लो एक बार, है ना। यहाँ पे क्या था, ऑक्साइड था जो कि नॉन कंडक्टिंग, ऊपर इसके कंडक्टिंग प्लेट है। ओके, और नीचे भी इलेक्ट्रॉन जब इकट्ठा हो जाएगा तो ये कंडक्टिंग प्लेट हो जाएगा, है ना। तो कैपेसिटर एक फॉर्म हो रहा है ना, तो इसी ऑक्साइड का वैल्यू, ओके, कैपेसिटर ऑफ दिस, कैपेसिटेंस वैल्यू ऑफ दिस कैपेसिटर, ओके, ये COX, ठीक है ना। ओके, सो ये इक्वेशन फॉर द लीनियर रीजन, ठीक है। और फॉर द सैचुरेशन रीजन व्हेन VGS इज ग्रेटर देन VTH minus VTH, VGS minus VTH, तो ये वाला इक्वेशन आएगा। ये इक्वेशन, ठीक है, म्यू n डॉट COX, है ना, इंटू W by L by 2 इंटू VGS minus VTH whole square। Okay, so this is for the saturation region, ठीक है। ये आपका K था ना टोटल, K डैश, तो आप इसको K डैश लिख सकते हो, K डैश by 2। ओके, ठीक है। Now you'll see the difference between BJT and MOSFET। कुछ फटाफट पॉइंट्स है, उसको देख लो। Okay, so obviously BJT is bipolar device, current controlled। ओके, फिर नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉसेस आर लो, हाई करंट रेटिंग में आता है, स्विचिंग फ्रीक्वेंसी लोअर है ना बीजेटी। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला। इसमें क्या है, बाइपोलर यूनिपोलर है ये। ओके, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, देन पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट है, लो पावर एप्लीकेशन में यूज होता है, ठीक। स्विचिंग फ्रीक्वेंसी इज वेरी हाई। ओके, ठीक है। सो
दिस इज द डिफरेंस बिटवीन MOSFET एंड इसका जो स्पीड ऑफ ऑपरेशन, ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी, स्विचिंग फ्रीक्वेंसी हाइक मीनिंग का मतलब क्या हुआ, जैसे कि अगर आप कोई स्विच है उसके क्रॉस अगर 1 मेगाहर्ट्ज का कोई सिग्नल आप अप्लाई कर देते, 5 वोल्ट है आपके पास सपोज, वो एसी सिग्नल और उसका फ्रीक्वेंसी है मेगाहर्ट्ज में 1 मेगाहर्ट्ज सपोज, अभी आप उस मॉसफेट को दोगे तो आराम से वो काम करेगा, लेकिन इसी को बीजेटी को दोगे तो वो काम नहीं करेगा, उसके ब्रेन से बाहर है। ओके, दैट मीन्स जैसे मैं कुछ बोलूं बहुत फास्ट 2x 5x करके, तो आपको समझ में आएगा? नहीं आएगा। तो उसी चीज मतलब सेम चीज है, अगर बीजेटी के अक्रॉस हाई फ्रीक्वेंसी का कोई सिग्नल दो एज कंपेयर टू दिस मॉसफेट, तो वो उतना अच्छा आउटपुट नहीं आएगा, समझ नहीं पाएगा। ओके, सो switching frequency is very high in the MOSFET, but in BJT lesser than the MOSFET. Okay, ठीक है। और क्या बच गया है इससे इस मॉड्यूल में? कोई बोलेगा? आप ही बता दीजिए सर। हम तो बताएंगे ही, तुम लोग सिलेबस नहीं देखते हो? नहीं सर, टॉपिक के हिसाब से चलते हैं। आज तक सिलेबस देखा ही नहीं? देखे हैं सर। देखें सर। तो बताओ। याद नहीं है ना सर? याद ही नहीं है? नो सर। सिलेबस देखने का है ना, बिना सिलेबस देखे कैसे होगा? नहीं सर, तो आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं ना, उसके हिसाब से चलते हैं। अगर छूट जाएगा तो बता देंगे। ठीक है, I'll see in the next class. In 1 minute, I think it is going to disconnect. We don't have much time. Okay. ओके सर। So I think the MOSFET and JFET transistor है वो, this is it. Okay, any doubt anyone can ask. Okay, इस सेक्शन में किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो अलग मॉड्यूल स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, कल थोड़ा ओपैम्प डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है? अगर यस सर। you have time. सर बता देंगे सर, ओपैम्प छूटा हुआ था ऐसे भी। कुछ नहीं है, वो भी सिंपल इसी तरह का डिवाइस है, उसमें कितना क्या टर्मिनल है, कैसा उसका प्रॉपर्टीज है। जैसे आप बाइक खरीदोगे तो बाइक 2 व्हीलर है, काम उसका चलने का ही है लेकिन 2 व्हीलर है ना, तो उसका चलाने का तरीका अलग है, 4 व्हीलर का चलाने का तरीका अलग। कोई भी डिवाइस आप पढ़ते हो तो पहला वो कैसे बना है, उसका काम क्या है, ये चीजें सीखने का है। उसके बाद अपने आप उससे जो भी सर्किट बनेगी वो आपको समझ में आ जाए। व्हाट द पॉइंट? यस सर। So this is it for today. Next we'll meet. जो देखते हैं क्या क्या छूटा हुआ, because we have second mid sem